So I hope you people have completed last class work, which was actually we had done in the class only. But if anybody's work was left or absent students, तो आप लोगों ने कर लिया होगा, है ना? Yes. So currently we are learning chapter number 7, fractions. Today we are going to learn about equivalent fractions. Till yesterday we have completed the concept about proper fraction, improper fraction and mixed fraction. So hopefully you people are clear about it. Yes. सबको clarity है? No. Yes. चलो. So equivalent fraction also you had learned previously in the previous classes, but some are the logics behind it which we are going to understand today. Okay? So for that, close your book and pay your attention here. Whatever is given in the book that I am going to explain. Over here, let us take the same size of figure. Same size of figure हम देखेंगे 1, 2 and this third one. समझो कि तीनों की इनकी साइज क्या है? सेम. Now I am dividing this first one into equal two parts. How many parts? 2. And to write down the fraction for the shaded part, then we can say that 1 is shaded out of 2. Now let us divide the same size object into equal 4 parts. Okay, and out of 4 I am going to shade 2. मैं 2 को शेड कर तो क्या आएगा 2/4. Same size I am going to divide it in the 6 equal part. Okay, and I take 3 out of 6. So 3/6. ठीक है? Now relation between these three figures. So if you have noticed, so each and every figure or each and every fraction is representing the same portion of the whole object which is shaded. Means यहाँ पे आप देखो तो 2 में से 1, 4 में से 2 and 6 में से 3. तो exactly half हुए. Yes. Out of 2 1. Out of 4 2 and out of 6 3. तो same हुए. तो all these three figures or the fractions are representing the same matter or the same detail. We can say that. यहाँ पे 1/2. यहाँ पे भी आपको सिंप्लीफाई करोगे तो 2/4 आएगा, तो 1/2 हो जाएगा. ये भी 1/2 हो जाएगा. ठीक है, एक बात ये हो गई. दूसरी बात समझने की बात ये है कि मैं 1 के टेबल में 2 कहाँ पे आता है? 1 2 ज़ा. 2 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है? 2 2 ज़ा. ठीक है, सिंप्लीफाई करो 2/4 आया which is given here. So it is equivalent fraction. ओके, सेम वे 1/2 है. 1 के टेबल में 3 कहाँ आता है? थर्ड पोजीशन. एंड 2 के टेबल में 3 कहाँ आता है? थर्ड पोजीशन. 3/6 which is given here. Okay, what I had done, मैं कंपेयर करना चाहती थी दो फ्रैक्शन को. What I had done, दो फ्रैक्शन को मैं कंपेयर करना चाहती थी. तो मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को I मल्टीप्लाई विद द सेम नंबर. न्यूमरेटर को भी I मल्टीप्लाई विद 2 and denominator also multiplied with 2. So whatever the result came over here, that is known as the equivalent fraction of this one. What it means, I can say that 1/2 is equivalent to 2/4. How could? So this is the first one logic. If this one is the multiple of original one, then find out at which place it comes.
So it comes on second position. So for the new denominator, whatever is there in this number, is it multiple of this? So yes, at which place it comes? In the second position. So with the same number you multiply it and you get this answer. So these two are equivalent fraction. So this is first logic. What is the logic? Whenever one fraction is given and you multiply numerator denominator both with the same number and whatever the another fraction you get it, those two fractions are known as equivalent fraction. Same way here आप देखो तो 1/2 दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से और I got 3/6. So these two are also equivalent fraction. How could we say? तो मैंने फिगर से आपको समझाया कि क्यों दोनों इक्विवेलेंट है. तो ये दोनों फ्रैक्शन सेम बातें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना. यहाँ पे भी 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट लिए हैं, 6 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स लिए हैं. तो ये दोनों भी इक्विवेलेंट है. कौन? 2/4 एंड 3/6. अभी आपको क्वेश्चन होना चाहिए कि मैडम 3 इज नॉट देयर इन 2's टेबल, है ना, एंड 6 इज नॉट देयर इन 4's टेबल. सो ये हो गया फर्स्ट लॉजिक टू कंपेयर द फ्रैक्शंस, आर दे इक्विवेलेंट और नॉट. बट दूसरा लॉजिक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का है. सेकेंड लॉजिक क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. उसमें क्या करना है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है. इसका एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर लिया तो दूसरे का डिनोमिनेटर. सो 2 × 6 करोगे, आंसर क्या आएगा? 4 × 3 करोगे, आंसर क्या आया? सो बोथ आर इक्वल, आंसर सेम आया. This one is second logic to find out that the given fractions are equivalent or not. First logic, you can find out if these are the multiple of the given number. Then you can find it out, is there a common number by which we can multiply it and we get the new one number. So these two are equivalent. Second logic, multiply numerator with the other fractions denominator. Denominator with other fractions numerator, and if you got the same answer, same number, then these two are equal. Third logic, suppose मैं यहाँ पे लेती हूँ 36 डिवाइड बाई 12 और उसे डिवाइड करती हूँ 4 से. जैसे यहाँ मल्टीप्लाई किया कॉमन नंबर से, वैसे आप डिवाइड करो कॉमन नंबर से. 4 से 12 ओके, तो क्या आएगा यहाँ पे? क्या आएगा? 4 times 36 4 12 4 36. 4 से 36 कहाँ लेना बेटा? डिवाइड करना है. 4 3 से डिवाइड करना है. 36 डिवाइड बाय 4 तो 9 4 जा 36. 4 के टेबल में 36 कहाँ आता है? 9th पोजीशन है कि नहीं. और 4 के टेबल में 12 कहाँ आता है? 3rd पोजीशन पे. तो ये 9/3 जो आया, that is equivalent to 36/12. So we can say that 36/12 is equivalent to 9/3. ठीक है, समझ में आया? नाउ यहाँ पे आप तब भी सॉल्यूशन ले सकते हो जब फर्स्ट आपके मल्टीप्लिकेशन टेबल कंप्लीट होने चाहिए. सेकेंड, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. तभी आपको पता चलेगा. ये तो मैडम ने बहुत स्मॉल नंबर ले लिए और मल्टीप्लिकेशन आ गया, डिवीजन भी आ गया. बट व्हेन यू हैव द बिग नंबर्स, एट दैट टाइम यू पीपल हैव टू डिसाइड इट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लिकेशन पे कई बच्चे क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो you will not get the clear idea of this topic. First of all, आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल नहीं आते हैं तो उसे प्रिपेयर करो. Now we are not that much small कि everything teacher has to tell you.
पहले खुद को ऑब्जर्व करो कि मेरे मल्टीप्लिकेशन टेबल कंप्लीट है क्या। मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाने की बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, इजी वेज, वो ढूंढो। अभी तो दुनिया आपकी मुट्ठी में है और उससे आप लोग पढ़ो और वो मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाना शुरू करो। किसी भी रैंडम नंबर को ले लो और उसका टेबल बनाओ। रैंडम नंबर लेना है, ऐसा नहीं कि 1 to 20 मगअप कर लिया और आ गया। कोई भी नंबर ले लो, सपोज 57 और उसका टेबल बनाओ। 63 टेबल बनाओ, टेबल मगअप मत करो। टेबल मगअप करने की बात नहीं है। टेबल्स मीन्स मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट, बराबर है ना। आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, तो टेबल्स की प्रैक्टिस करो। जैसे भी टाइम मिले ना, कभी भी ऐसा लगे कि मेरे पास कोई काम नहीं है, 10 मिनट तक फ्री हूँ, कोई भी एक रैंडम नंबर लेके उसका टेबल बनाओ। टेबल बनाना कैसे है वो एक्सपर्टीज आपको सीखनी है, मगअप नहीं करना है। आप मगअप करते हो, भूल जाते हो, गलतियां करते हो। मगअप नहीं करो, टेबल बनाने की प्रैक्टिस करो। हाउ कुड आई मेक द टेबल ऑफ एनी नंबर। तो एक ये है। मैं क्यों ये बोल रही हूँ, बिकॉज मैंने यहाँ इमीडिएटली अभी ढूंढ लिया कि 2 कहाँ पे आएगा तो सेकेंड पोजीशन पे, 4 कहाँ पे आएगा तो सेकेंड पोजीशन पे। बट दिस इज वेरी बिगिनिंग लेवल है ना, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड का लेवल है, तो हमने कर लिया। वैसे जब भी अभी मैंने 36/12 लिखा और डिवाइड बाय 4 किया तो आपको देर लगी आंसर ढूंढने में, बिकॉज यू आर नॉट क्लियर। 4 इज अ फैक्टर ऑफ 36, तभी उससे हम डिवाइड कर सकते हैं। मुझे एग्जाम्पल जो लेना है वो मैं कैसे लूँ, तो उसका जो फैक्टर हो उसी से मैं डिवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। उसी के टेबल में वो नंबर आता है, इसलिए आई टुक 4। 4 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 12 बोथ, जो आपको समझ में आना चाहिए। That's why factors and multiples chapter is given in the beginning of this textbook. आपको 6th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में शुरुआत में वो टॉपिक दिया है, क्योंकि दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। फिर जैसे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यहाँ पे भी आपका मल्टीप्लिकेशन टेबल क्लियर होना चाहिए। क्लियर हो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में? Whenever we compare two fractions, are they equivalent or not? So there are basically 3 methods to find out the given fractions are equivalent or not. First you could find out कि जो 2 फ्रैक्शन हमें दिए हैं उसमें से कोई किसी का मल्टीपल है, एक के टेबल में दूसरा आता है, बट कंडीशन क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के टेबल में सेम पोजीशन पे वो आना चाहिए, ठीक है। तो ये चेक करो फर्स्ट। सेकेंड, नहीं समझ में आता है कि ये तो भाई उसके टेबल में नहीं है, सो हाउ कुड वी फाइंड? क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर आंसर सही आता है, सेम नंबर, देन दोज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एंड द थर्ड वन, बिग नंबर है और यहाँ पे स्मॉल है, तो इसके मल्टीपल में तो वो आएगा नहीं, तो क्या करें? तो डिवाइड करो। तो कॉमन फैक्टर होना चाहिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का। ये एक ही नंबर से मैंने डिवाइड किया, यहाँ 4 से करो, यहाँ 3 से करो, वो नहीं चलेगा। व्हाट इट? सो एक ही नंबर से डिवाइड करो और जो आंसर आता है दोज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्लियर हो सर? ओके, बिफोर मूविंग अहेड मुझे एक आज आपको क्लैरिटी देनी है। मैंने कल मेरी गलती ढूंढी, बिकॉज मुझे डाउट था कि हमने यहाँ कुछ गलत किया और दैट वाज राइट, बट आई वाज नॉट गुड, मेरे हेल्थ इश्यूज है, तो मुझे वहाँ पे चलो क्वेश्चन नंबर 138 पेज नंबर का ट्राई दिस जो हमने किया था वो आपकी नोटबुक ओपन कर, पेज नंबर 138 का ट्राई दिस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम आगे बढ़े उससे पहले मुझे वो क्लियर करना है। वहां पे क्वेश्चन नंबर 3 था, मैंने आप लोगों को
बार बार पूछा भी था कि आर वी गोइंग राइट, बट आप में भी सब लोग मेरे साथ कन्विंस हो रहे हैं कि यस ना, बट वी मेड मिस्टेक ओवर दैट। क्वेश्चन नंबर सी जो है ना कि whose numerator and denominator add up to 10, how many fraction of these kind you can make? मिला सबको? वहां पे हमने ऐसे आंसर बना दिए कि 0/10, 1/10, 2/10, इफ यू रिमेम्बर वो आंसर लिखे ना हमने, तो दैट इज रॉन्ग। यहाँ पे ऐसा दिया है कि whose numerator and denominator add up to 10, मानी कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है उसकी कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और वो क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 10। एक्चुअली बेसिक लॉजिक ये पूछा गया, लेकिन हमने समझने में क्या गलती कर दी और आंसर गलत लिख दिया। वहां पे आपने जो आंसर लिखा है उसे क्रॉस कर दो। बहुत बड़ा क्रॉस नहीं करना है, छोटा वाला क्रॉस करो सिर्फ, और फिर अगर आपके पास वहां पे जगह है तो आप वहां आंसर लिख सकते हो। इफ नॉट दैट देन आपके कंटिन्यू पेज में भी आप लिख सकते हो, जहाँ पे हेडिंग लिख दो पेज कौन सा है ये, राइट इसका 138, क्वेश्चन क्या है 1 और उसमें सी बराबर है, और उसका आंसर लिख दो। क्या आ गया? चलो कंडीशन क्या है? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 10। तो अगर मैं न्यूमरेटर में 0 लेती हूँ तो डिनोमिनेटर क्या आएगा? 10। दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए? 10। यहाँ पे 1 लूंगी तो 9, 2 लूंगी तो 8, 3 लूंगी तो 7, 4, 5 बराबर 6, 7, 8, 9 and 10। तो इतने फ्रैक्शंस बने। Got it? सबको समझ में आया? Yes. ये लॉजिक जरूर लिखना, नहीं तो समझ में नहीं आया कि फ्रैक्शंस कैसे बनाए। क्वेश्चन क्या है कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर शुड बी 10। Complete. चलो, और अभी हम शुरू करेंगे ट्राई दीज ऑफ पेज नंबर 142, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बेस पे। शैल आई अबाउट? कंप्लीट हो गया सबका? या कौन सा नंबर आता है? 142 की ट्राई दीज करनी है। 142 नंबर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बाद में है, देखो तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड आर 1/3 and 2/7, 2/5 and 2/7 and 2/9 and 6/27 इक्विवेलेंट। गिव रीजन। तो आपको क्वेश्चन पहले कॉपी करना है, सबकी नोट में क्वेश्चन होना चाहिए। We are discussing just now. Try this of page number 142, and I am directly writing the answer. You just copy the question in your notebook.
Yes, ma'am. Over here they are given us three fractions. First one is 1 upon 3 and 2 upon 7. 1 upon 3 and 2 upon 7. Yes. Sure. So first of all we have to think on that part. Okay, any one out of these are multiple of another one or not? Yes. So 2 is multiple of 1, 1. but 7 is not multiple of 3. All are. बराबर है? Yes. अभी सेकेंड देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, क्रॉस करके देखोगे तो 1 मल्टीप्लाई 7 तो 7 आएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 तो 6 आएगा. There are not equal, 6 and 7 are not equal. Third, division की possibility है क्या? नहीं है. So we can say that 1 upon 3 is not equal to 2 upon 7. Reason क्या है? तो 1 multiply 7 is equal to 7 and 3 multiply 2 is equal to 6. बराबर? यहाँ पे आप लिख सकते हो ये नॉट इक्वल टू पढ़ना ऐसे है, इक्वल टू की साइन पे या तो स्लैंटिंग लाइन या स्टैंडिंग लाइन करना है. और हाउ कुड वी रीड दिस सिंबल? नॉट इक्वल टू. व्हाट इफ? So these two are not equal to. 2 upon 5. चल सेकेंड क्या है? 2 upon 5 and 2 upon 7. 2 upon 5 and 2 upon 7. So 2 upon 5 and 2 upon 7. Are they equal? No. Not equivalent. Same यहाँ पे भी आप लिख सकते हो 2 upon 5 is not equal to 2 upon 7. Reason cross multiplication दिखा दो. 2 multiply 7 is 14 and 5 multiply 2 is 10. ये जो मैं 3 डॉट कर रही ना वो रीजन बताने के लिए ये सिंबल मैथ्स में उल्टा ट्रायंगल तो सीधा ऊपर 2 आते हैं और नीचे 1 आता है, उसे रीजन बोलते हैं. क्या रीजन? दैट्स व्हाई ऐसा बोलते हैं. ओके चलो थर्ड वन 2 upon 9 and 6 upon 27. 2 upon 9 and 6 upon 27. are not And ढूंढो बराबर ढूंढो. are not equivalent. How could you? Equal. Yes, equal. इक्वल है. डिवीजन करके. Yes. डिवीजन भी कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो. 2 multiply 3 and 9 multiply 3 will get 6 upon 27. So you can write over here. That's why. ये that's why का ये triangle है. ये 2 upon 9 is equal to 6 upon 27. मैंने कैसे फटाक से डिसीजन ले लिया? Because 6 is multiple of 2 और वो कौन सी पोजीशन पे आता है? थर्ड पोजीशन पे. 27 is also multiple of 9 and वो कौन सी पोजीशन पे आता है? थर्ड पोजीशन पे. तो दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा. ये क्विक डिसीजन तब आता है जब आपके टेबल्स के कॉन्सेप्ट क्लियर. डन? चलो नंबर 2, गिव एग्जांपल ऑफ 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. तो आप खुद भी बना सकते हो. मैं अलग अलग मेथड से यहाँ बनाने चली 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. फर्स्ट लॉजिक से मैं बनाऊंगी. पहला सपोज मैं लेती हूँ यहाँ 8 मल्टीप्लाइड बाई 4, 7 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 32 अपॉन 28. ये फर्स्ट लॉजिक हो गया कि whenever you multiply numerator and denominator with the same number you will get its equivalent fraction. तो कौन से दो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट हुए? 8 upon 7 is equal to 32 upon
28. चलो सेकेंड एग्जाम्पल लो. 9 multiply 4. कोई भी दे सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे चले. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे मुझे जाना है. सपोज में 6 अपॉन 9 ले लो, बराबर. तो क्या करोगे? 2 3 are 6, 3 3 are 9. नहीं, वो नहीं लेना, मुझे तो कुछ बड़ा नंबर लेना है. मैम 26 upon 20. मैं ऐसा ले लूँ 8 अपॉन 12, Yes. बराबर. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या आया? 6 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 72. ठीक है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट हो गए. नंबर 3, अभी डिवीजन से ले ले कुछ. तो मैम 9 upon चलो ऐसा कुछ ले ले. 75 डिवाइड बाय 5 एंड 20 डिवाइड बाय 5. ठीक है, तो 75 डिवाइड बाय 5 में क्या आएगा? 15. एंड 20 डिवाइड बाय 5 में क्या आएगा? 4. So we can say that 75 upon 20 is equal to 15 upon 4. तो ये हो गया थर्ड एग्जाम्पल. मैम 4 के अंदर फोर्थ में कुछ भी ले लो अकॉर्डिंग टू योर ओन विश. मैम 12 upon 10. 12 upon 10 लेके फिर क्या उसका दूसरा बनाओ. दूसरा मैम 15 upon 10. हाँ 9 upon 11. देखो आता है कि नहीं. अगर आपको 12 अपॉन 10 लेना है तो आपको जाना पड़ेगा 6 upon 5. हाउ कुड आई गेट इट? तो इसका कॉमन फैक्टर क्या है? 2. 6 बार 12 को 2 से डिवाइड करो 6 आएगा. 10 को 2 से डिवाइड करो 5 आएगा. मैंने कैसे पता कर लिया? बराबर है ना. तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए. 60. ये भी लिख सकते हो. दूसरा लॉजिक भी बता सकते हो. कौन सा? 12 डिवाइड बाय 2 10 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6 अपॉन 5. बोथ द लॉजिक्स यू कैन शो ओवर हियर. चलो कंप्लीट कीजिए फटाफट. मैम नंबर 3. मैम इस पे फिगर ड्रॉ करने हैं. नहीं, आप लोग पहले फ्रैक्शन टेक्स्ट बुक में लिख दो Yes. कि ये फिगर कौन सा फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करती है. मैम Get to write down in the textbook first. For shaded part. मैम 8 upon 6 upon 8. 6 upon 8. जो भी आता है लिखो पहले. 4 figures are there. 4 fractions. 9 upon 12. Second. 12 8 upon 12 12 is the second. हाँ. 8 upon 12. 9 upon 12 आएगा. First में जो है 6 upon 8 आएगा. मैम डन. First fraction क्या आया? 6 upon 8. 8 9 upon कैसे है? 12. 6 upon 9. 9 yes yes. 9 upon 16. 9 upon 9 upon 12 12. upon 16. 12 upon 12 upon 16. 12 upon 16. 18 upon 18 sorry. 15 upon 20. 15 upon 20. Got it? Yes. चलो पहले समझ लो. या पहले you pay attention to me, then after you can write in your. So what is the question here? क्या are the equivalent? So to find it out, we have to compare each other, each one with each one. Means
आई मीन टू से 6/8 को पहले हमें तीनों के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर 9/12 को we have to compare with this, then these two we have to compare. So first fraction हम इसका ले ले which is 6/8 and आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा and 9/12. चलो सोचो, are they equivalent? Yes. Yes. First is that कि 9 जो है वो 6 का मल्टीपल है, नहीं है। सेकेंड कंडीशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 6 मल्टीप्लाई 12 क्या आएगा 72, 8 मल्टीप्लाई 9 क्या आएगा 72, बराबर है। We can say that 6/8 is equal to 9/12. Number 2, 6/8 and 12/16. 12 6 का मल्टीपल है, yes. At which position it comes? Second position. Or 16 is also multiple of 8. Second position. 12/16. So we can say that 6/8 is equal to 12/16. हो गया? Yes. Number 3. What is it? 6/8 and 15/20. Are they multiple of each other? Yes. 6 का मल्टीपल है क्या? No. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख, 6 मल्टीप्लाई 20 120, 15 मल्टीप्लाई 8 120, ठीक है। तो 6/8 is equal to 15/20. ये हो गया 3। तो ये थर्ड फर्स्ट वाला जो है वो बाकी तीन के साथ कंपेयर हो गया, ठीक है। नाउ सेकेंड, तो सेकेंड क्या है 9/12 and 12/16. So are they multiple of each other? No. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 9 multiply 16 you will get 144 and 12 multiply 12 you will get 144. So 9/12 is equal to 12/16. ये भी हो गया। कंपेयर करके इस तरह से कंपैरिजन करके आपको जाना है और ढूंढना है कि गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट। चलो अभी क्या आएगा, सेकंड और फोर्थ दोनों को कंपेयर करना है। सेकंड और फोर्थ में क्या है, सेकंड मीन्स 9/12. आई एम ऑन फिफ्थ वन कंडीशन पे 9/12 एंड 15/20. तो वो मल्टीपल नहीं है एक दूसरे के, फैक्टर्स भी नहीं है, तो जस्ट ओनली वन कंडीशन वी हैव टू चेक व्हिच इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो 9 मल्टीप्लाई अभी लिखने की जरूरत नहीं है, पहले समझो कैसे आता है। ये भी 180 आया। सो 9/12 इज इक्वल टू 15/20. ये भी हो गया। सिक्स्थ कंडीशन 12/16 एंड 15/20. 12/16 and 15/20. 12 multiply 20 240. 16 multiply 15 240. So 12/16 is equal to 15/20. So we can write down the answer that all fractions are equivalent to each other. Chalo, complete kar. Write it down in the notebook, everybody. But understood everybody else? Clear हो? चलो तो जल्दी करो। ये थर्ड यहाँ पे है, हाँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. And then at the bottom we write down this sentence. All fractions are equal. Hurry up, चलो जल्दी करो। आंसर लिखना
सॉरी क्वेश्चन बराबर लिखना, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक में आपको नंबर 3 पे दिया गया है ट्राई दिस का। Then after you underline this statement which is given on 143 page number, first paragraph. Find an To equivalent. find an equivalent fraction of a given fraction, you may multiply both the numerator and denominator of the given fraction by the same number. Okay. Yes. And same way, after another way जो लिखा है ना, उसके नीचे फिगर है, हाँ. उसके नीचे के पैराग्राफ में सेकेंड मेथड के बारे में Find the equivalent fraction divide things divide above the both the numerator and the denominator by the same number. बराबर है? Yes. तो उसे भी अंडरलाइन कीजिए। और today your homework is Try this page number try this page 143. number 143। Yes. उसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको ढूंढने हैं, बराबर? Yes. तो वो कंप्लीट करनी है। एंड टर्न द पेज 144 पे एक टेबल है, देखो। हाँ. वो इसके अंदर करना That है. table you have to complete in the text book only। Yes. Yes. Oh yeah. बराबर? Yes. तो ये ट्राई दिस एंड ये टेबल दोनों आपको कंप्लीट करने हैं। तो ये आज का आपका काम खत्म हुआ है।